Hello everyone and welcome to our this lecture in which we will deal with logical instructions. In the last videos you must have seen that we have already completed data transfer instructions and arithmetic instructions. So now let's begin with the logical instructions. The first instruction in logical instruction is compare instruction. Okay, so CMP means that it is a compare. Okay, now how you will compare? Opcode is CMP for comparison. Okay, operand is again, as I said, this is register and this is memory location. Okay, so when we are writing CMP, how you will write? You will write CMP, and if a register is mentioning, you have to mention some kind of register, maybe B, C, D, E. Okay, any register you can mention it here. If you are mentioning H or L, that means first of all we have to go to H register, and always remember this is normally used for register pair only. When you will use register pair, then only H registers come, because you have to first crack the address from there. That means you have to take the address from there, then you have to go to that particular memory location, and then you have to pick the data from there. So it will be quite complicated. First of all, let's see how compare works. CMPB, that means what? You have to compare the value of B from the value of accumulator. ठीक है, जो भी डाटा आपका accumulator में given है, I told you last time also कि अगर सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्टर गिवन है तो उसका मतलब ये होता है कि आप उसकी वैल्यू को, चाहे वो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, चाहे आप जो है लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, दोनों ही केसेस में आपका बाय डिफॉल्ट जो रजिस्टर होता है वो एक्यूमुलेटर होता है. सो इफ यू आर कंपेयरिंग इट बी, दैट मीन्स अगेन द फंक्शन विल बी लाइक ए इज इक्वल्स टू A minus B. Now comparison के लिए ये चीज बहुत जरूरी है. Okay, remember this thing. And again जो भी result होगा that will be stored in the A register. And यहाँ पे A minus B actually ये this is not a you can say arithmetic instruction. ये subtraction वाला instruction नहीं है. A minus B we are doing it for comparison. First of all, processor will give the minus sign. A minus B करेगा. Now check from here. If A की value is less than the register value or memory location, that means if in case यहाँ पर A is less than B, ठीक है, तो क्या होगा आपका? A minus B आप करोगे, there will be a negative sign. Okay, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका? इस केस में आपका कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा, बिकॉज यू हैव टू टेक द बोरो. ठीक है, और बोरो में भी मैंने आपको बताया था कि आपका ये चीज आएगा ही आएगा. देन कम्स may be possible if both the values are same. तो अगर आप a minus b करोगे, then in that case if a is equals to b, the result will be 0. ठीक है, तो क्या सेट हो जाएगा आपका? 0 फ्लैग सेट हो जाएगा. क्लियर दिस थिंग? इतना चीज आप ध्यान रखना. सिमिलरली अगर a की वैल्यू ज्यादा होती है, that means if a is more than b, then what will going to be happen? जहां पर a माइनस b कर रहे हैं, a की वैल्यू ज्यादा है, b माइनस है, तो नॉर्मल सिग्नल आपका आएगा. सो इन दिस केस मे बी कैरी फ्लैग, अगर कोई कैरी आ जाता है देन इन दैट केस कैरी होगा. अब यहाँ पे बोरो वाला नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नहीं है. ठीक है ना, या फिर 0 फ्लैग आपका जो है वो रीसेट, कैरी एंड 0 यहाँ पे रीसेट हो जाएंगे. ठीक है ना, एंड द नॉर्मल आपका सारे फ्लैग्स अकॉर्डिंगली ही सेट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू, तो सारी वैल्यूज उसी के अकॉर्डिंग सेव हो जाएंगे. नाउ कंपेयर भी आपको समझ में आ गया. सेम वे एम का मतलब है मेमोरी लोकेशन. सो you have to perform the same function compare. You have to write any 2025H, जो भी आपने कोई भी मेमोरी लोकेशन लिख दी है. Now that means what? You have to take the value from 2025 मेमोरी लोकेशन. आप मेमोरी में जाएंगे, वहां पे 2025 जहां पे भी ये लोकेशन गिवन होगी, वहां पे जो भी डाटा होगा आपको वो पिक करके लाना है. मे बी 3, 4, 33, 45 कुछ भी हो सकता है. तो वो वैल्यू आप लेकर आओगे और उसको फिर ए एक्यूमुलेटर की वैल्यू के साथ माइनस करोगे, एंड माइनस करके यू विल जस्ट चेक दीज 3 things. Either the value of A is less than B or equals to B or more than B. ठीक है ना, और उस केसेस में आपके जो फ्लैग्स है वो आपके अकॉर्डिंगली सेट एंड रीसेट हो जाएंगे. सो दिस इज हाउ अ कंपैरिजन गोज ऑन. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ANA. इसका मतलब होता है यू हैव टू एक्चुअली गो फॉर द लॉजिकल एंड ऑपरेशन. आपको लॉजिकली एंड करना है. किस किस को करना है? रजिस्टर की वैल्यू को विद द वैल्यू ऑफ
you can say with the value of accumulator. Okay, तो जो भी वैल्यू आपकी accumulator में given है, आपको उसको रजिस्टर के साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है ना. व्हाट इज एंड ऑपरेशन? सी, एंड आपको शायद याद होगा, दिस इज अ लॉजिकल गेट. ठीक है ना. तो एंड ऑपरेशन का मतलब ये होता था कि सपोज if there is an input x and input y, then what will be the value of the output z? तो एक्स वाई आपका इस तरह से होता था 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1. इस केस में अगर 0 0 है तो एंड में आपका आउटपुट 0 आता था. 0 1 है यानी कि 0 एंड 1. ठीक है, यहाँ पे क्या है, दोनों नहीं है, मतलब जब तक दोनों के दोनों हाई नहीं होंगे तब तक आपका रिजल्ट हाई नहीं होगा. सो दिस विल बी 0 बिकॉज 0 एंड 1 है. 1 एंड 0 अगेन 0, 1 एंड 1 1. इस केस में आपका सिर्फ 1 होगा, यानी कि जब दोनों आपके हाई होंगे तभी आपका रिजल्ट हाई होगा. एंड के केस में मतलब एंड दिस दोनों होने चाहिए, और नहीं है कि इधर यू आर टेकिंग दिस और दैट. ठीक है ना. तो सबसे पहले तो एंड में आप ये चीज याद रखिएगा कि आपको ये इस ट्रुथ टेबल पे वर्क करना है. नाउ लेट अस सपोज यू हैव गिवन एन इंस्ट्रक्शन लाइक ANA and again I'm taking here as B. Okay, ANAB. अब आपने ANAB लिख दिया. लेट अस सपोज द वैल्यू ऑफ B इज, अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 0 1 0 0 1 1 0 0. ठीक है, तो इसको आपको किसके साथ वैल्यू को आपको करना है, एक्यूमुलेटर की वैल्यू के साथ आपको एंड करना है ना. एक्यूमुलेटर की वैल्यू को अगर मैं लिखती हूँ 0 1 1 1 0 1 1 0. ठीक है, लेट अस सपोज अगर हमने ये वैल्यू लिख दी, सो व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ एंड. अब ये ना तो एडिशन है ना सब्ट्रैक्शन है, हमें इसमें एंड ऑपरेशन लगाना है, यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस ट्रुथ टेबल 0 प्लस 0, सॉरी 0 एंड 0, तो 0 एंड 0 will be a 0, 1 and 0 again 0, 1 and 1 definitely it will be a 1, 0 1 again 0, 1 0 0 1 0 0 1 1 it will be a 1, 0 0 0. So now your answer is this. Remember, ये चीज क्लियर हो गई ना. तो A and B अगर आप लिख रहे हो तो A और B आप ये इस तरह से एक्चुअल में ये ऑपरेशन परफॉर्म होता है. दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द एंड ऑपरेशन परफॉर्म. ठीक है, जो आपने एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया है. सिमिलरली आपको वही चीज मेमोरी लोकेशन से जो वैल्यू आएगी उसके साथ भी यही चीज करनी है. सो दिस इज कॉल्ड लॉजिकल एंड रजिस्टर और मेमोरी विथ एक्यूमुलेटर. ये चीज क्लियर हो गई है. नाउ इन दिस केस यू हैव टू जस्ट रिमेंबर वन थिंग, दैट जो यहाँ पे लिखा है साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, क्वैरिटी फ्लैग्स आर मॉडिफाइड. ठीक है, वेयर एज कैरी फ्लैग इज रीसेट एंड ऑक्सिलरी कैरी इज सेट. तो कौन कौन से फ्लैग्स आपके सेट हो रहे हैं, कौन से रीसेट हो रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है ना. देयर आर few instructions in which no flag is going to be affected. कुछ फ्लैग्स ऐसे होंगे जो कि unaffected रहेंगे. Next comes ANI. Okay, ANI again this I is coming. Now what is I? मैंने कई बार बताया आपको, I means immediate data. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ANI लिख रहे हो, आप उसके बाद ना तो कोई रजिस्टर की वैल्यू लिख सकते हो, यानी कि B C D E कुछ नहीं लिख सकते हो, और ना ही आप मेमोरी लोकेशन दे सकते हो. आप सीधे सीधे दोगे ANI 65. ठीक है, 65H. नाउ अब 65H का मतलब ये हो गया कि इसकी वैल्यू आपको जो है एक्यूमुलेटर की वैल्यू के साथ आप इसको एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो. लेट अस सपोज द वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर इज 3. ओके, नाउ सी व्हाट विल गोइंग टू बी हैपन. अगर हम यहाँ पे 3 लिखते हैं 3 3, तो इट विल बी लाइक 0 0. okay, it is creating some problem I think. 1 1. ओहो यस, मेरा हाथ गलत जगह पे, ये आप बटन पे प्रेस हो रहा था, सॉरी. देन अगेन 3 3, यानी कि 0 0 1 1 6. अभी आपने A लिख दिया है. नाउ 6 6 को हम कैसे लिखते हैं, 0, क्योंकि ये आपका 4 हो जाएगा. तो 4 1
एंड 0, ठीक है। हम इसको 6 ऐसे लिखते हैं और 5 हम लिखेंगे 0 1 0 1। नाउ अब इसमें जब आपको एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सो 1 1 विल बी अ 1, 1 0 will be a 0, 0 1 will be a 0, 0 0, again 1 1 will be a 1, 0 1 will be a 0, and 0 0 will be a 0. So this will be the result of ANI 65H, where we have assumed that A is 33H. Clear this thing? Now similarly you can check from here, SZ are modified, वही चीजें होती हैं, CY is reset and auxiliary carry is set, ये रहा आपका, ठीक है। ANI 86H ये एग्जाम्पल है, आप इसको सेम इक्वेशन जो से मैंने करा है आपकी करके दिखाया है, जस्ट ट्राई इट विथ 86H, टेक द वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर एज पर योर चॉइस, एकदम से आप आर्बिट्ररी कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर लेना एंड देन फाइंड द वैल्यू, ओके, फाइंड द रिजल्ट एक्चुअली। नाउ नेक्स्ट कम्स XRA. What XRA means? Exclusive OR. You all know that you call it XOR, ठीक है, XOR बोलते हो या फिर आप इसको XOR भी बोलते हो, ठीक है। तो ये कई तरह से ट्रुथ टेबल आपकी आती है, XOR, एक्सक्लूसिव OR और XOR, ठीक है। सेम चीज है, रजिस्टर्स और मेमोरी लोकेशन के साथ व्हेन यू आर राइटिंग यू विल राइट XRI आएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दैट विल बी एन 8-bit डेटा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। नाउ आई एम राइटिंग हियर द ट्रुथ टेबल ऑफ XOR, एक्सक्लूसिव OR का ट्रुथ टेबल अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या होगा, ये आपका आउटपुट है एंड दीज आर द इनपुट्स, x1 x2 भी आप लिख सकते हो अकॉर्डिंगली। नाउ ऑलवेज रिमेंबर दैट जब आप XRA कर रहे हो यानी एक्सक्लूसिव OR कर रहे हो, तो एक्सक्लूसिव OR का जो आपका ये ट्रुथ टेबल आता है, दैट विल बी लाइक कि if the number of ones are in odd, then the result will be high, okay, and if the number of ones are what, even, then the result will be low. So this is how a truth table works. और ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पे एक और कोई इनपुट आ जाता है, यानी अगर 3 इनपुट डेटा हो जाता है, तो ये पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा आउटपुट में भी पॉसिबल। यहाँ पे अगर 1 आ गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। So remember this thing. Now if I am writing XRA-B, ठीक है, जैसे XRA-B यहाँ पे दिया हुआ है, यू कैन राइट इट B और यू कैन राइट इट, चलो आज मैं यहाँ पे C ले लेते हैं, बट इट इज वन एंड द सेम थिंग। लेट अस सपोज की वैल्यू हमने वही रखी है 33H फॉर एक्यूमुलेटर एंड C की वैल्यू हम ले लेते हैं 65H एज यूजुअल, ठीक है, जो हमने इसके पहले लिया था। सो अगेन जस्ट सी 0 0 1 1 0 0 1 1, ठीक है, ये 33 हो गया एंड लेट्स कम टू 65, दैट इज 0 1 1 0 एंड 5 इज 0 1 0 1। सो अब इसको आप XOR कैसे करोगे, इफ देयर आर 2 even ones then it will be a 0, but if there are odd ones then the result will be high. तो odd है again, ये तो 0 है तो 0 ही रहेगा, then this then 0 then this then 0. So this is how it works, ठीक है। तो रिजल्ट आपका इस तरह से आ जाएगा। XRA C कर दिया। सिमिलरली आप क्या लिख सकते हो, आई एम जस्ट राइटिंग इट हियर, आप चेक कर लो, XRA, ठीक है, 2045H, ठीक है, ये जो भी मेरे दिमाग में आ जाता है मैं कर देती हूँ इसको, है ना। जस्ट डोंट थिंक कि यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, मेरे माइंड में 2045 चल गया तो मैंने लिख दिया, इट कैन बी एनीथिंग, 2001 2020, ठीक है। नाउ XRI अगेन यू हैव टू राइट एन 8-bit डेटा, दैट मीन्स XRI 24H सीधे, ठीक है। कोई भी आपने जो है यहाँ पे एक डेटा 8-bit का डेटा दे दिया जो कि हेक्साडेसिमल में आपका 2 बिट्स दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो XRI 24, अगर A की वैल्यू हम यहाँ से 33 लेते हैं तो फिर से वही हो जाएगा कि 0011 0011 एंड दिस इज नाउ योर होमवर्क कि आप इसको जो है XOR निकालें इसकी वैल्यू। आई एम जस्ट राइटिंग इट आउट, रिजल्ट आप खुद फाइंड आउट कर लेना, 0010 and 4 is 0100. Now find out the result and write it down in the chat box, ठीक है, जो आपके कमेंट सेक्शन है उसमें आप इसका आंसर मेरे को देना। नेक्स्ट ORA, that means now you have to perform a logical OR operation. Again
विथ रजिस्टर पेयर विथ मेमोरी लोकेशन, और अगर आई आता है तो क्या हो जाएगा, ये 8 बिट डेटा आपका लॉजिकल और रहेगा, लेकिन आप डाटा को डायरेक्टली दोगे, कोई भी रजिस्टर कोई भी मेमोरी लोकेशन नहीं होगी। सो लेट्स सी, अगर हम यहाँ पे आपको सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि और का ट्रुथ टेबल कैसे वर्क करता है। सी 0 0, ये आई होप एवरीवन नोज, आपने इसको मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के फॉर्म में लर्न कर रखा होगा। सो जस्ट रिमेंबर अकॉर्डिंग टू योर ओन वे, मैं समझा रही हूँ उस हिसाब से नहीं, आपको जैसे लर्न है वैसे ही, क्योंकि ये काफी पुरानी चीज है, ये तो आप 10th 12th में कर लेते हैं बड़े इजीली, इनफैक्ट बिफोर दैट 0 1 1 0 1 1, अगर बीटेक में भी किया है देन यू शुड लर्न दिस थिंग, इट शुड बी देयर। ओके, नाउ और मींस ईदर दिस और दैट, कोई भी एक अगर हाई हुआ तो आपका रिजल्ट हाई होगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑल द नंबर्स विल बी हाई बिकॉज ईदर ऑफ वन इज देयर, मतलब एक हाई है ही, ईदर हियर y इज हाई, हियर x इज हाई, हियर बोथ आर हाई। तो ये चीज हो गई। नाउ ORA आप इस तरह से लिख रहे हो, ORA रजिस्टर C कर लिया, C की वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पे 65 मेंशन कर रखी है, यू कैन चेक फ्रॉम हियर, ठीक है, ये 65 33, आप यही चीज पूरा लगाओ। दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे सेम इक्वेशन पूरी लिख देती हूँ 0 0 1 1 0 0 1 1 एंड देन 0 1 1 0 एंड 0 1 0 1, ठीक है। तो अब जब आप और ऑपरेशन लगा रहे हो तो और ऑपरेशन का तो मतलब ये हुआ कि कोई भी एक हाई है देन द रिजल्ट विल बी हाई। तो लेट्स सी, ये एक 0 0 आया, अदरवाइज दे ऑल आर हाई एंड देन दिस 0, वेरी इजी। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि अभी और ऑपरेशन एंड एक्सओर ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होंगे। आई एम गिविंग यू अगेन वन मोर क्वेश्चन, ORI 36H, ओके। अब इसका आप और ऑपरेशन परफॉर्म करो। आई एम गिविंग यू द वैल्यू ऑफ A हियर इज let us see 43H, ठीक है। तो 43 और 36 का और ऑपरेशन निकालो एंड राइट इट ऑन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट is RLC, okay, so RLC means rotate accumulator left। एक्यूमुलेटर में जो भी वैल्यू गिवन है, सपोज हमने 33, चलो अब 34 ले लेते हैं, ठीक है, 34H हम एक्यूमुलेटर की वैल्यू इस पूरे के पूरे स्लाइड के लिए हम यही रखेंगे। सो रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट का मतलब है कि आप इस एक्यूमुलेटर की वैल्यू के एक एक बिट को क्या करोगे, आप रोटेट करा दोगे टुवर्ड्स लेफ्ट। एंड सिमिलरली RRC मीन्स रोटेट एक्यूमुलेटर राइट। तो सॉरी, लेफ्ट मतलब इस साइड, राइट मतलब इस साइड, ठीक है। आपको अकॉर्डिंगली जो है इसको रोटेट कराना है। आपने लिख दिया RLC, ठीक है, और RLC का मतलब ही है कि ये आपका सीधे सीधे क्या हो रहा है, एक्यूमुलेटर को ही रोटेट कराएगा। सो रिमेंबर देयर इज नो ऑपरेंड, दिस इज जस्ट एन ऑप कोड, केवल ऑप कोड की तरह ही ये वर्क करते हैं। और ये चीज आप याद रखना कि कौन से ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं जहां पे आपको किसी ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आगे हम ये चीज काम आएगी, ठीक है। सो सिंपल RLC आपने लिख दिया। नाउ लेट अस सपोज द वैल्यू ऑफ A इज 34, दैट मीन्स अगर हम इसको एक इस तरह से टेबल बना लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 1 मोर 8, हो गया 8। यहाँ पे हम 3 लिखते हैं यानी कि 0 0 1 1, और 4 लिख देते हैं यानी कि 0 1 0 0, ओके। अब हमें इसको किस साइड रोटेट कराना है, हमें इसे कराना है टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, यानी कि इस डायरेक्शन में हम रोटेट कराएंगे। तो जिस डायरेक्शन में आप रोटेट करा रहे हो उस डायरेक्शन में एक चीज ध्यान रखना, आप जो है एक कैरी फ्लैग आप सेट कर दो, जस्ट लाइक दिस, ओके। नाउ व्हाट विल बी गोइंग टू बी हैपन, अगर इसी को हम जब रोटेट करा लेते हैं, इसमें एवरी बिट इज गोइंग टू बी रोटेटेड, ठीक है, एक एक बिट आपका रोटेट होगा, यानी कि ये वाला लेफ्ट साइड में इधर आ जाएगा, ये लेफ्ट साइड में इधर आ जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर रोटेट हो जाएगा। इस तरह से आप डेटा को रोटेट करा रहे हो, ठीक है। और ये वाला क्या होगा, कैरी फ्लैग में भी जाएगा। दिस इज द MSB,
एंड दिस इज द LSB यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ये वाला आपका कैरी में तो जाएगा ही जाएगा, बट साथ के साथ ये कहाँ जाएगा, ये आपके लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे मूव कर जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, जस्ट वेट, आई विल अगेन शो यू 35 34। okay, now again let's see, I'm writing here a is equals to 34h। ठीक है, हमने एक बहुत बड़ा सा बिट बनाया, ठीक है, और एक हमने साइड में यहाँ पे कैरी फ्लैग लगाया। नाउ द रिजल्ट विल बी, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से आप इसको जो है रोटेट करा रहे हो, सो जस्ट चेक इट कि जो रिजल्ट आपका आएगा, सबसे पहले तो आपने बिट बाय बिट इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पे, इस तरह से हर एक बिट को आपने क्या करा, रोटेट करा दिया। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू जब इस जगह रोटेट हो जाएगी तो आप यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये वाला यहाँ शिफ्ट हो गया तो ये वाला भी ब्लैंक है। ठीक है, ये 1 यहाँ पे, फिर 0, फिर 1, फिर 1, फिर 0। नाउ ये जो 0 आपका है ये वापस घूम के इस जगह पे आ जाएगा 0, लेकिन साथ के साथ ये जो आपका कैरी फ्लैग था उसमें भी जाएगा। ठीक है, कैरी फ्लैग को भी मतलब सेट रीसेट करता रहेगा। दैट मीन्स अगर हम इसको एक बार और रोटेट करा देते हैं तो क्या होगा, सारी चीजें उसी तरह से फिर से एक एक बिट लेफ्ट साइड में रोटेट हो जाएगी। ठीक है, और एंड में क्या होगा, सपोज यहाँ पे किया मैंने ये 0 0, ये वाला ये 0 था, ये 0 यहाँ शिफ्ट हुआ, फिर से ये 0 यहाँ शिफ्ट हुआ, ये 0 यहाँ शिफ्ट हुआ, तो ये 0 हो गया, देन 1 0 1 1। ठीक है, और ये कैरी फ्लैग में फिर से 0। इसी तरह से आप बार बार करते रहोगे तो अगली बार ये 1 यहाँ आ जाएगा और यही 0 वापस घूम के क्या हुआ, यहाँ पर आ गया। ठीक है, मतलब ये वैल्यू वापस घूम के यहाँ आ जाती है। तो द सेम थिंग विल गोइंग टू बी हैपन। इस तरह से आप जितनी बार इसको रोटेट करा रहे हो उतनी बार ये इसी तरह से बिट्स जो है वो शिफ्ट होते रहेंगे। अगर हम इसको यहाँ पर आपका R रोटेट कैरी टू द लेफ्ट, अगर हम ये तो हमने RLC करा, अब हम RRC अगर देखते हैं तो सेम प्रोसेस होगा। द ओनली डिफरेंस इज दैट कि नाउ बिट्स विल रोटेट टुवर्ड्स द राइट साइड। सो जस्ट चेक, अगर हम सेम 34 बिट को ही लेते हैं, ठीक है, नाउ सी, दैट मीन्स 0 3 था, 0 1 1 एंड 4 इज 0 1 0 0। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको राइट साइड में मूव कराएंगे, डन, इस तरह से। सो नाउ यू हैव टू पुट योर कैरी फ्लैग बिट एट दिस साइड। व्हाट विल बी द रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या होगा, ये वाली वैल्यू यहाँ तो जाएगी ही जाएगी और यही वैल्यू घूम करके वापस यहाँ पर आ जाएगी। एवरी बिट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स इट्स राइट साइड। ओके, सो लेट्स सी व्हाट विल बी द आंसर। अगर आप इस तरह से इसको कंप्लीट करते हैं, नाउ सी चेक, द आंसर विल बी 0 0 1 1 0 1 0। ठीक है, कैरी फ्लैग में क्या गया, 0, और वही चीज वापस यहाँ पे आ गई, दैट इज 0, यानी जो चीज कैरी फ्लैग में गई वही आपकी यहाँ आ गई। दिस इज RRC एंड दिस वन इज RLC। बस यही डिफरेंस है, अदरवाइज दे बोथ आर सेम। नाउ ये आपने कर लिया, ये कर लिया। नाउ व्हाट इज RAL एंड व्हाट इज RAR, रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट थ्रू कैरी। ठीक है, अभी तक हम कैरी में भी डाल रहे थे और हम क्या कर रहे थे, वहां पर भी डाल रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, आई विल शो यू, वी विल टेक सम अदर वैल्यू। ठीक है, हम कुछ और वैल्यू लेकर के करते हैं। लेट्स सी हाउ, RAL एंड RAR, यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। सी, अगर हम सबसे पहले करते हैं RAL, ठीक है, सेम चीज है। ओके, आई हैव नॉट गिवन द हियर, ठीक है, ये इस तरह से हो गया, थोड़ा सा स्पेस उधर मैंने कम छोड़ दिया। ओके, लेट अस सपोज आप इसको लेफ्ट साइड पे रोटेट करा रहे हो। ठीक है,
1 0 0 1 0 0 1 1 0, ठीक है, कुछ भी मैंने आर्बिट्रेरी एक नंबर ले लिया है एंड दिस इज कैरी। तो ये आपका D7 MSB से लेकर के ये D0 आपका शुरू हो रहा है, ये LSB हो गया और ये क्या हो गया, सॉरी LSB एंड दिस विल बी योर MSB, ठीक है। अब हम उसी तरह से इसको शिफ्ट कराएंगे 1 1 1 1। नाउ द थिंग इज दैट इन केस ऑफ RAL इसमें थ्रू कैरी है, रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट थ्रू कैरी, दैट मीन्स D7 जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो तो कैरी फ्लैग में आएगी, लेकिन वही अब वापस LSB में नहीं जाएगी, वो आपकी क्या होगी, जो वैल्यू कैरी फ्लैग में है वो यहाँ पे जाएगी। सो लेट अस सपोज द वैल्यू ऑफ कैरी फ्लैग इज 0, ठीक है। अभी हमने ये एज्यूम कर लिया कि द वैल्यू ऑफ कैरी फ्लैग इज 0, तो अब जो रिजल्ट आपका बनेगा वो इस तरह से बनेगा। अगर हम इसको एक एक करके शिफ्ट कराते हैं, सो द 0 विल बी हियर 1 1 0 0 1 0, ठीक है। नाउ ये आपका कैरी फ्लैग था, इसके अंदर 0 था, लेकिन अब क्या होगा, ये 1 जो है वो शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा, सो द 1 विल बी हियर, और इस कैरी फ्लैग का जो 0 है वो आई मीन टू से यहाँ आ जाएगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन RRC और RLC एंड RAL, ठीक है। तो ये RAL हो गया। सिमिलरली अगर आप इसमें RAR करते हैं तो RAR के केस में भी आपकी वही चीज होगी, यू हैव टू जस्ट मेक अ बॉक्स जो कि आपका वही D0 से D7 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम यही वैल्यू लेते हैं, जस्ट वेट, एंड फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेकिंग कि कैरी फ्लैग में 1 है, ठीक है। सो लेट्स सी 0 0 1 1 0 1 0 0, ठीक है, ये हमने लिया। अब आप क्या कर रहे हो, इसको राइट साइड में शिफ्ट कराओगे, तो बिट बाय बिट हर बिट एक के बाद एक, ये वाला यहाँ पे, ये वाली यहाँ पे, इस तरह से शिफ्ट होती जाएगी। 0 वाली यहाँ जाएगी और ये वैल्यू घूम करके कहाँ जाएगी, सॉरी मेरा हमेशा थोड़ा सा पेन पहले ही रह जाता है, बट डोंट वरी, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो ये चीज आपकी आ गई। नाउ बिट बाय बिट आपने इसको शिफ्ट करा लिया होगा एंड जस्ट write the answer directly 0 0 1 1 0 1 0, ये बिट 0 यहाँ गया और कैरी फ्लैग का 1 उठ के यहाँ आ गया। So this is how RAL and RAR works. I hope this is sufficient. Okay, let's complete this also because this is the last part of the logical instructions and very short CMA. This is to complement the accumulator, ठीक है। CMA लिखना है, there is no operand. CMC, no operand is there, that means you have to simply write these opcodes and it itself says that what it means. CMA means complement accumulator. If the value of accumulator is 0 0 1 1 0 1 0 1, you have to just complement it 1 1 0 0 1 0 1 0। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है उसका जस्ट आप वंस कॉम्प्लीमेंट ले लो, जस्ट अपोजिट कर दो, 0 है तो 1 1 है तो 0, तो वेरी इजी, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। नाउ दिस इज क्वाइट इजी। लेट्स कम टू CMC। CMC का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट कैरी। सो द कैरी फ्लैग इज कॉम्प्लीमेंटेड एंड द फ्लैग्स आर नॉट अफेक्टेड, ठीक है। तो अगर कैरी फ्लैग 1 है तो मेक इट 0, अगर कैरी फ्लैग 0 है तो मेक इट 1, खत्म। देन STC set carry, that means you have to set the carry, जैसे आपने STC किया, that means if the value of carry is 0 you have to set it to 1, nothing else, complete। Now this completes your logical instructions. Next that we will do is control instructions. Till then take care.